देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। He comes from a lineage of great sages, yogis, and saints from India. He began his spiritual journey at the age of 7 and was fully realized by the age of 14. During this time, he delved into different practices and acquired mastery over Tantra, Mantra, Yantra, Aghori practices, and Yaksha sadhana. He was a siddha and many masters, saints, and sages used to visit him in solitude to gain wisdom and guidance from him since the tender age. Although he has been helping humanity since childhood, he never disclosed this part of him to the world, and only the advanced yogis and masters were aware of his divine presence. Only in the last 2 years he chose few people from the world and started guiding them in their spiritual paths, and those who have been closely associated with him have witnessed many miracles in his presence. Despite being a family person, he is a yogi and intends to help people entangled in this world achieve Jivan Mukti, liberation while being alive. He is truly in the world but not of the world, and if you really want to understand him, look him beyond his physical appearance and just sit with him and you will never be the same again. In his presence you will transcend your body and mind and experience the state of Sat, absolute truth, Chit, pure consciousness, Ananda, eternal bliss. Let us fold our hands in front of his divinity and with a heart filled with gratitude and love welcome our spiritual guru, the realized soul, and our enlightened master, Guru Meenakshi Mishra.
ॐ प्रसन्नवदना सौभाग्यदां भाग्यदां भारताभ्यां अभयपदा मणिगणैः नानाविधैर्भूषिताम् ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। अहं ब्रह्मास्मि। So good evening everyone. Welcome to the Q&A session. So question and answer, सवाल आपके, जवाब आपके. So nice to see you all. Some people say it has been ages. No, it has not been ages. It has just been a week. So एक कहावत है विद्या जी, जो संसार के लिए आते हैं वो संसार में विलीन हो जाते हैं, और जो शिव के लिए आते हैं वो हम में लीन हो जाते हैं. So good to see you all. But I can only see few people on the screen. I don't know, like other people are still getting ready, I believe. Sure. But most amazing thing is no hands are raised. So that means I don't have a work. You have given me a holiday today as well. Good. Oh. Yes. Yes, Vidya ji, please unmute yourself. Oh, sorry. Yes, now you can unmute. Pranam Vidya ji. विद्या जी, आपका वॉइस क्लियर नहीं है. या तो आप थोड़ा माइक थोड़ा नजदीक रखिए. नहीं, क्लियर नहीं है. इफ यू आर यूजिंग एनी हेडफोन्स विल बी गुड. नहीं, आपके माइक में प्रॉब्लम है विद्या जी. अच्छा, अभी बोलिए, देखते हैं. Every source which is created by a God has its own aura. So we can experience when we are in the presence of them. We feel good, which is having a positive aura. We feel low, or feeling sleepy, dizzy when there is any negative person or negative aura nearby us. So we can experience it, but how we can see it? विद्या जी टाइप कर दो. Because there is a background noise in that. सवाल सुनाई नहीं दे रहा है. Okay. So Hari bhai, were you able to No, hear no. anything? I mean, I heard in bits and pieces actually. I'm also not clear. If we hear in bits and pieces, and we'll give another answer then. Yeah, meanwhile, we'll take Anubhaji. Anubhaji, please unmute yourself. Pranam, sir. Pranam Anubha ji. Sir, it's a very pertinent question when it comes to my profession. So a friend of mine, like a college friend, he recently cleared the judiciary exam. He's become a judge and he is currently posted in the state of UP. Okay. Now, in that state, the bar is basically very powerful. And even though you're the judge, and I mean, ideally speaking, you should be respected. They are like, they do whatever they want, and they're absolutely untouchable.
because even though they disrespect you in your own court, when you're the presiding judge and you can hold them for contempt, you can do nothing with them, because the next day itself they'll boycott the court, they'll boycott the proceedings, uh they'll put the streets on fire, and a lot of people will die. At the same time, it could be that you might not see the sun the next day, okay, if you do anything to them. Now, this friend of mine, I have known him for ages now, and I know he's a gem of a person, and he's a very, very calm person. I mean, I have not come across a human as calm as him. Now, when he was hearing one of the cases, and this advocate approaches him, and this advocate was basically going to run for the MLA's election. And the client who came along with the advocate, he was trying to show him that, I've got these powers, that I can dominate over the judge, I can tell him whatever, and he can't do anything to me. Now, अब वो मेरे फ्रेंड के ऊपर कुछ भी एलिगेशंस लगाए जा रहे थे. अब जैसे हम यूपी की बात करें तो जातिवाद और यूपी को तो हम अलग देख ही नहीं सकते. तो वो उसके साथ पर्सनल हो रहे हैं, वो उनको कह रहे हैं कि आपने उसको उसके कास्ट के वजह से, उसके जाति के वजह से जवाब दिया है, अब उसके फेवर में डिसीजन दिया है, एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड ही केप्ट गोइंग ऑन. अब बहुत देर तक तो मेरे दोस्त ने काफी शांत स्वभाव अपना रखा, बट उसके बाद ही जस्ट लॉस्ट इट. अब इन्होंने कह तो दिया, एंड ही रिलीज द अरेस्ट ऑर्डर्स फॉर दिस एडवोकेट. अब उन्होंने कह तो दिया, बट उसके बाद वो खुद थोड़ा सा उनको लग गया कि मैंने क्या कह दिया, और इसके बाद पता नहीं क्या अंजाम हो इस चीज का. फिर उनको डिस्ट्रिक्ट जज के कैबिन में बुलाया गया, और डिस्ट्रिक्ट जज ने कैसे भी करके बस सुलह करवा दी. अब सर, मेरा ये सवाल है कि उस सिचुएशन में कल को कोई भी हो सकता है, या अगर मैं अपने आप को कल देखूं उस सिचुएशन में, तो ये जो विडंबना है कि एक तरफ तो कोई मुझे कुछ भी बोले जा रहा है जो कि सत्य नहीं है, मेरा अपमान कर रहा है मेरी ही कोर्ट में, और मैं उसे कुछ नहीं कर पा रही हूँ. तो मैं वहां पे लोगों को न्याय देने बैठी हूँ, और मैं अपने लिए ही न्याय नहीं कर पा रही हूँ. बट एट द सेम टाइम अगर मैंने उसे कह दिया तो कल को पता नहीं सड़कों पर क्या हो, और कल को हो सकता है मैं जिंदा ही ना बचूं और न्याय देने के लिए. तो how do I deal with this? What should be the ideal response to what that person did? Great. So purely a worldly question, but let us deal with that then. Let us deal with it. So Anuvaji, a person when he becomes a judge, he or she must be completely aware of the hazards of the job as well. Mm-hmm. Despite knowing the hazards, you joined, or he joined. That's what we are talking about, right? So now, there are two kinds of people. One who will stand, may what may come. And those will be the people, those who will change the course of time. And there will be others, those who will mix with them. And just like any other person around, they will become like them. So here, when you ask what should be your standpoint, it's your choice. Because when you took the responsibility to decide upon the fate of other people based on the rule, जो न्याय पद्धति है उसके हिसाब से ही आप लोगों की ऊपर आप you take the decisions, right? You pass on the decisions, right? So here it is purely a personal choice. Now the thing is, if I move a little bit from the standpoint of the worldly thing that we are discussing to move a little bit towards the spiritual accent to that.
ओके। हालांकि उनकी पोस्टिंग और कहीं भी हो सकती थी। नहीं सर, ये स्टेट एग्जाम है ना, तो उन्होंने यूपी ही क्लियर किया। ओके, सो इन दैट केस ही ऑलरेडी नोज व्हाट द जुडिशियरी सिस्टम इज देयर। जी बिल्कुल, हाँ पता होगा ऑब्वियसली। सो ही शुड बी रेडी। ये आपके कहने से या मेरे कहने से नहीं होगा। अब देखिए, पहली बार क्या होता है, when he said something, in the later half what happened to him, he started thinking, अरे गलत कर दिया क्या। Can there be a fearful judge, a fearful army officer? नो सर, एब्सोल्युटली नॉट। Because that job demands it. So where is the question here of even asking this question? Now he has to decide. Either he stands and whatever comes he accepts it, or as usual goes. What would you suggest as a friend to him? सर मैं जैसी इंसान मैं हूँ, मैंने तो अपमान नहीं बर्दाश्त किया होता। वो भी, उसने वैसा कुछ किया ही नहीं है, जातिवाद और पता नहीं क्या क्या। और अगर मैं कल को उस कुर्सी पे अपने आप को देखूं तो बीइंग अ वुमन मेरी डिसरिस्पेक्ट या मेरा अपमान करना तो और आसान है। Yes. और मैंने अरेस्ट तो मुझे नहीं पता, बट मैंने कम से कम इतना एक्शन तो लिया होता कि ये मेरी कोर्ट में दोबारा ना हो। So can you see, you are a fighter there. बट सर वो जो मैंने जो एक, अब उसके अंदर किस चीज का डर था मुझे नहीं पता, बट मेरे अंदर शायद वो विडंबना तब आएगी जब मुझे लगेगा कि अगर इसने मुझे कुछ नहीं भी किया, कल को इफ दे पुट द सिटी ऑन फायर एंड एन नंबर ऑफ पीपल डाई, इनोसेंट पीपल, तो फिर मुझे वहां पे मेरी एक गिल्ट आ जाएगी कि क्या मैं चुप रह जाती तो क्या इतने लोगों की जान बच सकती थी। वो चीज शायद मेरे अंदर थोड़ी सी आ जाए। और अगर वैसा कुछ नहीं हुआ तो शायद आप वही शायद में रह जाएंगे कि शायद अगर मैंने कुछ कहा होता तो शायद ठीक हो जाता। कैन यू सी, यू कैन नॉट लिव लाइफ विथ शायद, काश and all those things. It's not the way of living life. It's about dragging your life in that way. Now if गीता पढ़ी है आपने? हाँ सर, मैंने खत्म नहीं किया अभी तक, नहीं, बट कम से कम आपने शुरू किया, वही बड़ी बात है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग शुरू भी नहीं करें। सो आप अगर शुरू कर दे, खत्म कर देंगे, दैट्स अ गुड स्टोरी, दैट्स अ गुड थिंग टू नो। अच्छा, कृष्ण ने युद्ध करने के लिए कहा था, नहीं कहा था? कहा था सर। क्यों कहा था उन्होंने? क्योंकि उनका कहना था कि अब मुझे उसका हिंदी वर्ड नहीं पता, बट अगर धर्म को अपहोल्ड करने के लिए जो भी करना पड़े वो किया जाएगा। अब वो छल हो, वो किसी को मारना भी पड़े, छल भी करना पड़े, सब कुछ किया जाएगा टू अपहोल्ड द धर्म। So what should you suggest? If you believe in Krishna, then what would you suggest? Yeah, our first responsibility should be towards ourselves and towards upholding the dharma. And in this case, what he did, I would say then that was right. So let it be so. But he did a very amazing thing out there, you know. Even without his knowing, he did what he wanted and later on changed it the way they thought they got what they wanted. समझ में आ रहा है आपको? जी मैं समझ गई। और उसको इनफैक्ट Now you asked me what should be the way. देखो, एक चीज बताना चाहूंगा अनुभा जी, दो तरीके के भगवान है यहाँ पे जो पूजे जाते हैं सबसे ज्यादा। एक है कृष्ण, दूसरा है राम जी। राम देखो बिल्कुल सीधा खड़ा है जी। उसे छल कपट नहीं आता। कृष्ण को कभी सीधा खड़े हुए देखा है आपने? नहीं। क्यों? क्योंकि सर जैसे कि मैंने कहा, उन्होंने धर्म को अपहोल्ड करने के लिए व्हाटएवर ही
यही है अनुभा जी। इसीलिए कहा जाता है कि गीता पढ़नी चाहिए कि कृष्ण ने क्या किया, क्यों, कारण क्या है उसका। देखो, राम के हाथ में धनुष है, लेकिन कृष्ण के हाथ में बांसुरी थी, बट स्टिल हु इज मोर टैक्टिकल इन हैंडलिंग पीपल? कृष्ण। कृष्ण। तो ये युग के लिए कौन बनना चाहिए? कृष्ण। सीधा सरल सा बात है। रोटी बनाते हो आभा जी, अनुभा जी घर पे? नहीं सर। नहीं बनाते? अच्छा, बनाते हुए देखा होगा ना किसी को? हाँ 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 हाँ। अच्छा, तो रोटी को जब सेकते हैं ना चूल्हे के जी ऊपर, जी एक चिमटे का यूज होता है, जी होता है कि नहीं? जी। और चिमटा सीधा होता है और उससे खाली रोटी ही पलटी जा सकती है। लेकिन अगर मटका उठाना हो तो चिमटे से उठेगा? नहीं। नहीं, एक टेढ़ा वाला आता है। ओके। समझ में आया? तो हाँ जब सीधा सरल काम है तो राम, जब टेढ़े काम तो कृष्ण। जी। But you should be knowing tactically how to make your work done, yet making the other people believe that they got what they wanted. और उन्होंने वही किया है। फिर उसको बाद में डिस्ट्रिक्ट जज ने, जो रिटायर होने वाले थे, उन्होंने चेम्बर में बुलाकर ये भी बोला कि तुमने आज वो कर दिया जो हम 65 इयर्स के उम्र में भी नहीं कर पाए। हाँ, इसीलिए इसीलिए कहा जाता है ना कि इवन इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड दे से ब्रिंग द फ्रेश ब्लड इन। जी। And who knows, this might just be a beginning of this person who is going to change many other things. Handling people tactically is something that we all have to learn. Especially, आप जब कह रहे हो कि he's sitting at such a responsible place, he has to go through. ये एक नहीं, जीवन भर, every case that you take up, there will be something or other associated to that. At times there will be a threatening call, at times there will be a bribing call, at times there will be, I don't know what all people do to get their work done. But as a judicial person, you should do your job judicially and at the same time handle the situation tactically. So what is the way out? Do what is right and do it in such a way that it doesn't seem like wrong, even to the person standing against you. You remember one thing, like when before Mahabharata Yuddha started, both Arjuna and Duryodhan went to Krishna. All of you know that. जी। उन्होंने दुर्योधन को खाली हाथ भेजा था क्या? नहीं भेजा ना। उन्होंने अपनी सेना दुर्योधन को दे दी। पूरी कृष्ण की सेना दुर्योधन के साथ गई, लेकिन कृष्ण किसके साथ रहे? सी हाउ टैक्टिकल ही इज। मतलब मानो मैंने आपको कार की चाबी दे दी, लेकिन स्टीयरिंग अपने पास रख ली, जाओ कार चलाओ। Any one of you master drivers can drive the car without it. नहीं होगा ना। सनुवा जी वही होता है। So as you asked me a very typical question, thank you for bringing that up. But that's how every person in this room has to deal with the world. It's not just of a person of that cadre, of that high post. Even a person, while dealing with their kids, they also face the same situation. घर में दो बच्चे हैं, एक बच्चा कहता है पापा मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं, दूसरा कहता है प्यार ही नहीं करते मुझे। अब बताओ, every situation. And that's where if people have started moving into spirituality, they should also learn the tacticality of it. हाँ, अप्पा राव जी ने अच्छा याद दिलाया, युक्ति। युक्ति सीखनी चाहिए आपको, खाली भक्ति नहीं। भक्ति और युक्ति दोनों चाहिए। नहीं तो सोचो, अगर आप पूरे स्पिरिचुअल हो जाओगे ना, लोग आपके ऊपर गाड़ी चढ़ा के चले जाएंगे, बोलेंगे ये अच्छे लोग हैं, इनके ऊपर चले जाओ। और कई सारे लोगों के साथ होता भी है। और मैं इसीलिए कहता हूं कि ऐसे नहीं बनना है। आपके जितने शांत भगवान भी है, सबके हाथ में हथियार है। क्यों है?
अच्छा कुछ लोग खुश हो जा रहे हैं, अच्छा तो इसका मतलब मैं भी बेलन लेके भाग सकती हूँ. हेलो. इसीलिए अनुवा जी, आई थिंक ही डेल्ट इट वेरी वाइजली. होता है एवरी बॉडी, व्हेन यू आर इन ए बॉडी यू हैव दैट फियर at what is going to be the end result, and especially at that kind of position. And as you said, situation jaisa hai wahan pe, one decision of yours can change the course of the entire state, entire place. लेकिन उनको भी यही बताइएगा युक्ति के साथ. जी. Let him do his work in the best possible way, with a way always on his side. Hoga. And as you said, no, like he got posted now. Slowly dealing with these people, he will also learn so many things. हो जाएगा. सर पर आपका ये स्टेटमेंट तो शायद मैं भूल ही नहीं पाऊंगी, that if you have to do the wrong thing, make the it should appear in the eyes of the other person as if you are doing the right thing. So yeah, that was like, so do it, because you are not doing anything wrong, you are doing it as per the law, but do it in such a way. That's, I think, like everyone, especially people those who deal with humans on a daily basis, they should be aware of it. But yes, good. May he become an icon out there so that everybody knows that the power is not only with few, it can at times be with one as well. So may he become that example for them, so that the thing that has not changed for ages might change now. Sanuwa ji, हमारे तरफ से उनको please pass on our regards to him. जी बिल्कुल सर. Okay. जी, thank you so much. Thank you. Thank you, Anubha ji. Vidya ji, please unmute yourself. Vidya ji किधर गए? Okay. Pranam Gurudev. Now the voice is clear. Yeah, because latest model is there ना, मेरे वाला तो पुराना है. इसीलिए कहते हैं, संध्या जी हमेशा कहते हैं कि समय पे समय आता है. Yeah, right. My question is, Gurudev, कि each one creature which is created by the God has his own aura. तो जैसे हम किसी मनुष्य हो, वनस्पति हो, yeah, or smallest to smallest animal, so we feel glad, we feel happy when the positive aura is there. And I have one experience 3 to 4 years back, when I'm sitting with one person, I just feel sleepy within a few seconds, and I just get up from that side, and then I'm okay again. So I think something is went wrong with that person. उस टाइम पे मुझे ये ऑरा वगैरह कुछ बात पता नहीं थी. Now I am just asking कि we can feel it, how we can see the aura of any person or our own aura. So you want to say, like, can you see it or not? हाँ. यानी इतने सारे लोग ये रूम में हैं, अभी उनसे पूछ लो. राजन जी के पास जाओ, देखो आ गए स्क्रीन पे, वो बता देंगे कैसे ऑरा देखना है. अपाराव जी के पास जाओ, वो बता देंगे कैसे ऑरा देखना है. So we can see it. एक सीक्रेट बात बताओ. I don't see aura. I allow others to see it. Yeah, that's, we can feel it. जरूरत क्या है? जरूरत नहीं है, just craziness. अच्छा, हाँ, that's the right word. If you say so, I agree with that. Then yes, little bit of craziness is required in life. You should have that dose of craziness around. Nothing wrong in that. I am happy by feeling someone in presence. I am feeling happy. I feel it. Even the animals, plants, I feel happy. But just how I can see. Very simple. Not about the human beings only.
with the plants. I have a small garden on my terrace. I always speak with them. So I feel happy. Even I do the mantras with them. You are not only transforming yourself, you are transforming your garden as well, I believe. They have so much beautiful flowers. Wow. When I started the mantras with them. Good. So, देखो एक चीज है, as a human we have forgotten all those things, but that is by nature in every one of us. हर एक जीव में ये है, ये कला है ऑलरेडी हम में. Now just think of a rabbit. Will he go near a tiger? A deer, will he go near a tiger? नहीं जाएगा. क्यों नहीं जाएगा? डरे मन में खा लेगा. How does it knows that it will eat? Only by listening the stories. Listening to the Stories. Listening to the stories. Wow. Then why does a newborn deer, when a tiger comes near, it also starts running? अच्छा, आप फिर बोलोगे अभिमन्यु होगा. No, it's not that. It's all about the vibration that they know. See, we do, before drinking water, we do so much of litmus tests. We use it, this machine, how much alkaline is it, how much pH value is there. We do all that. But animal doesn't do that. Then how does it know? Because they understand vibration much better than us. So the only thing is, how did they know so much about vibrations? One more secret. Do they talk like us? Yes. Not us, but they have their own language. The amount of talking that we do every single day, do they do that? Then what are they doing when they're not talking? Listening. They are listening. They are observing and absorbing. But we are so lost in our talks, thoughts, ads, advertisements, stories, sagas, Netflix, phones, games, that we don't have any other time to even sit down and to even exactly see what is happening around me where I'm sitting. Can you tell me what is the color of the door behind you? It's white and orange combination. Very good. Now tell me, have you put nail polish on your fingers? No, not right now. Any stains of nail polish still left? Yes, little bit. How can I see it from here? आप तो सब जानते हो. This is the problem. When it comes for you to know that, you are not seeing it. आप मेरे ऊपर डाल देते हो. I say, if you look very carefully, you can see it. But we don't want to. So, what you should practice in order to really experience. Have you seen one major thing about Rajanji? They are speaking very less. So what is the secret? Ask him why he's speaking so less. वो तो आप वही बोल देंगे. They are not speaking because they are observing. How did the entire mechanism of studies and all those things came into existence? The research that the people do. What does research means? At first doing the observation only. Yes. So when you start observing your plants, when you start observing with them, the best part is when you start vibrating at their level.
You can experience all that they are experiencing. To the extent, Vidyaji, if you are so connected with one plant, you are far off from your home, but somebody pluck a flower, you will know it. I'm talking about that kind of frequency. Now you say, is it possible? I said, let's say the same thing. There is a plant at your home and you are far off, and somebody called you and said that somebody has plucked the flower. Will you know it or not? Yes. Here you used a device called as a mobile phone, but again, still it is a vibration. So if you cut down on this device and connect directly, you can still have the same kind of experiences. How does a mother knows what happens to the kid far off? माँ को कैसे पता चलता है? बच्चा कहीं दूर है, लेकिन बच्चे को कभी चोट लगे तो माँ को पता चल जाता है कि अरे कुछ हुआ उसे. They start getting worried. They start calling them. How? Vibrating at the same frequency. Words can be many, telepathy or telephone, but all that is the connection between them. It's just like this. There is one single rod and you start hitting the rod from one side. उसका दूसरा भाग भी गर्म होगा नहीं होगा? क्यों गर्म हो जाता है? Because it is all connected. So when you connect with the people like that, and I believe Rajanji will agree with me, that's how they heal, that's how they connect, that's how they can see what their aura is. And that's Yes. so what you have to do? Yeah, we will start observing now. Don't try to see. We will start observing. मैंने क्या कहा? Don't try to see it, be it. Yes. So you should become that. Now, just like this feeling, that heaviness and everything, just I think only 1 week before we started one mantra Mahanirvans. So in the morning, I always get up at the 4 o'clock. It is not it. I am so much habitual about it. Without alarm also, I get awake at the same time. But while doing that chat, I feel somehow it is very burden on my head. Something is new, but it is not that laziness. It is also not, we can see sleepiness is also not there. It is good also. Then what is that? That is preparing you. बच्चा पहले दिन जिम गया है. If you go to the gym for the second day, there will be a lot of pain in your body. So you don't stop that. You go again, you go again, you go again, and you develop that muscle. What is this mantra doing? See, if it is not doing anything, then we should question that. If it is doing something, we should be really happy it is working now. I should not be worried going into the gym and lifting the plate which is feeling heavy. I will be worried if a 20-pound dumbbell is not having any weight. I will doubt its creation itself. So if these are happening, just continue for a few more days and let me know what. Okay. Thank you. So next, Aditi ji. हर हर महादेव. हर हर महादेव. मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना नहीं है. I just want to introduce one of my friend. He joined today for the first time. May I please? क्या अदिति जी? हाँ बोलिए. Can you hear me?
the voice is coming and going, so थोड़ा पास में रख यस के. अदिति जी थोड़ा पास में आके बोलिए थोड़ा. Okay, now can you hear me? हाँ, now tell. I don't have any question to ask right now, Mahadev. I just want to introduce one of my friends. He has joined today for the first time. Who has joined today for the first time? His name is Mayur Ranvirkar. He is from Pune. He is a chartered accountant by profession. Okay, so I want to introduce him. so you can welcome him to this day. With the, in first question only he was replying me like he is super. I said the best is yet to experience. Just wait and watch. Now I don't have anything to say. I just want to make him understand. So welcome. So Aditi ji, so no questions, right? Right now I don't have. Okay, so thank you. Thank you. Okay. Kamlinder ji, please unmute yourself. प्रणाम गुरुदेव. प्रणाम. गुरुदेव, प्रश्न कुछ ऐसा है कि जैसे हम माला वगैरह कर रहे हैं तो क्या है कि आंख बंद करके वो मंत्रों के उच्चारण शुरू करते हैं तो कई बार कुछ विजुअल्स आने शुरू हो जाते हैं. विजुअल्स प्लेसेस के हो जाते हैं कई बार, या कभी इंसान के, जिनको मैंने मतलब कभी देखा नहीं है, ना उस प्लेस को कभी मैंने देखा है, ना सपनों में, ना कैसे. तो ऐसा क्यों होता है? So any particular जाप करने के टाइम पे हो रहा है या नहीं? ये तो नॉर्मली किसी में भी आ जाता है, ऐसा है नहीं, पर्टिकुलर उसमें नहीं है. ओके. मतलब करते करते एकदम अचानक ही वो उस तरीके से एकदम दिखने शुरू हो जाते हैं. नो डाउट तो लंबे टाइम नहीं रहता, लेकिन do they worry you? नो, इट्स नॉट वरिंग मी, जस्ट क्यूरियोसिटी होती है कि भाई इस तरीके के विजुअल्स बीच में आ जाते हैं. अच्छा, those are part. अच्छा. Because आपने उन्हें अभी नहीं देखा होगा, हाँ, अच्छा. लेकिन कभी देखा होगा. ओके. It's not the first time you are here, right? हाँ, वो तो कहता है. So few things crop up, but those are of no interest to us. Just like a tree passing by, a field passing by, but my way, my destiny is something else. So ये सब आते रहेंगे. These things will be very small, and if it is not bothering you, then we should not be worried about it anyways. कुछ दिन पहले नहीं थे, अभी हैं, कुछ दिनों के बाद नहीं रहेंगे, वो अपना कार्य करके निकल जाएंगे. जी. और खैर पहले जो एक्सपीरियंसेस हो रहे थे उसमें और आज के उसमें तो बहुत ज्यादा फर्क आ चुका है. तो सेम चीज कंटिन्यू तो रहती नहीं है, हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं. एक मेरे मन में प्रश्न उठता है कि भक्ति योग जो रास्ता है वो इंसान को मतलब आलसी और वैसा बना देता है. मतलब पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता है. कौन सा मार्ग? भक्ति योग अगर करता है, क्योंकि देखिए जो सोमनाथ का केस हुआ था उसमें भी यही था कि पंडितों ने राजा को मना कर दिया कि भाई कुछ मत करो, भगवान आगे करेंगे. हमने ये पूजा कर दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया. तो एक वो लगता है कि कहीं है ना वो उसको खींच देता है बिल्कुल अलग उससे रास्ते से, जो उसके कर्म का मार्ग है उससे बहुत हटा देता है इंसान. ओके. ये पता नहीं क्यों मेरे को एक ये फीलिंग है. ओके. तो आप ये जानना चाहते हैं ये सही है या गलत? हाँ, ये मतलब ये मेरी फीलिंग गलत है या सही नहीं है. मैं एक बात बताना चाहता हूँ. भक्ति मार्ग आपको, it doesn't make you lazy.
Manaji, I think we lost you. Yeah. Check your internet connection, na, please. आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया. Okay. So, can you hear my voice? Yeah. Okay. There is some internet issue है अभी. आ जाएगा थोड़ी देर. तो शायद उसको भी बुरा लग गया कि आपने कहा कि भक्ति लोगों को लेजी बना देती है. मतलब लेजी इन द सेंस दैट वे नहीं, मतलब एक जैसे होता ना कि जो मैं एक कर्म है मेरा करने का, उससे मेरे को पीछे हटा देती है. कर्म के पाथ पे जो आगे बढ़ना है. भक्ति लेजी नहीं बना सकती, अब भक्ति क्रेजी बना सकती है. तो जो भक्त होता है वो हर पल अपने भगवान के साथ नाचते रहता है, अपने भगवान के साथ मिलते रहता है, अपने भगवान के साथ घूमते रहता है. वो चाहे बैठे तो भी अपने साथ नहीं बैठा, वो भगवान के साथ बैठा. तो लेजी तो नहीं हो सकता. हाँ, कुछ लोग भक्ति के नाम पे लेजी जरूर हो सकते हैं कि हमें कुछ नहीं करना है, जो करना है भगवान को करना है, लेकिन उनको बोलो तो फिर चुप बैठो, भगवान आके खाना खिला देगा. Recording in progress. So is this good now? Yeah, perfect. तो उनको बोलो कि भगवान आके खाना खिला देगा आपको. तब देखना वो लोग नहीं बैठेंगे, वो भागेंगे. क्योंकि उनको अपने भगवान के ऊपर डाउट है, विश्वास नहीं है. तो काय की भक्ति हुई. तो जो भक्त होता है उसे अगर आप कह दोगे कि मैं तो बैठा हूं, अब जब तक भगवान नहीं आता तब तक मैं खाऊंगा ही नहीं, और तब देखना भगवान आएंगे खिलाने के लिए. कभी आप में से किसी ने कोशिश की है कि मैं खाऊंगा तभी जब भगवान आएंगे? एनीबॉडी ट्राई? Dhaval ji, there is a beautiful statement that I wrote today. When you aim nothing, you get nothing. Or rather, the right word will be, if you aim nothing, you hit nothing. So, एक काम करो. Anybody dares to do that? कि आज तो मैं खाना तभी खाऊंगा जब भगवान आएंगे और खिलाएंगे तभी मैं खाऊंगा. Anyone? प्रणीत को कराते हैं. We'll put a camera for 2 days, 48 hours. Let's see what happens to him. Anybody wants to do that? Take a challenge. I am ready. Yes. So Suma ji, you gave the answer. That was not a statement. You gave the answer. आपने कहा कि घर में रहने वाले लोग ये होने नहीं देंगे. The people in the house will not make it happen. Then can't you see he comes to you in the form of a family member to feed you? मैं तो वही कहता हूं, अगर आपकी भक्ति सही है, if you are in the right path of your bhakti and you declare that I am not going to eat until you come, he will come in any form and feed you. Then you should be aware to know that who came to feed me today. ये खिलाने आया कौन? कभी कभी घर में कोई नहीं होता है, लेकिन आपका मन होता है खाने के लिए. क्यों? ऐसी
People will take it into extreme cases. That's why I don't share all these things. लेकिन अगर मैं बता दिया तो लोग जी भर के खाना शुरू कर देंगे. You know what I do? You are already full. Your belly is full. But suddenly you are sitting and you feel like eating something. Right? Then what do? I also put that on. यार मेरा तो पेट भरा हुआ है, तुझे भूख लग रही होगी, तुझे खाना होगा, तूने मुझे चुना है, ले खा. But some people will take it as an excuse and fill it. No, every action that I do is only and only for that. And that's why people look at me and say, why are you not putting on weight? Because I don't eat. तो धवल जी, भक्ति कभी लेजी नहीं करती है, लेकिन लोग भगवान के नाम पे भी बहुत कुछ करते हैं और भक्ति के नाम पे भी. So मीरा कभी लेजी नहीं थी. So it's not that way. लेकिन लोग हाँ नाम लेके कुछ कुछ कर जाते हैं. हनुमान से बड़ा भक्त हुआ है, उसको आप लेजी कहोगे? नहीं बोल सकते आप, वो भक्त है. बाकी जो दिखाने के लिए भक्ति करते हैं उनके लिए कुछ नहीं बोल सकते. वो तो कहेंगे हैं, मैंने कुछ लोगों को देखा है कमलेंद्र जी, बड़े अच्छे लोग होते हैं, मैंने देखा किसी को ऐसे ही पड़े रहते हैं, पड़ा हुआ है, क्या हुआ? नहीं, भगवान की मर्जी है इसीलिए मैं सोया हूं आज. अरे क्यों लेट उठा? ना भगवान की मर्जी थी इसीलिए मैं लेट उठा. मैं बोला तेरे से बड़ा भक्त देखा नहीं मैंने. तू इतनी बात अगर करता है तो भगवान तेरे सामने प्रकट हो जाना चाहिए. नहीं गुरुदेव, इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है, जैसे बोलते हैं ना कि कलयुग में भक्ति मार्ग ही सबसे सरल मार्ग है. कलयुग के लिए है, करेक्ट है. हाँ, और अभी क्या है कि जैसे जनरल पब्लिक की हम अगर बात करें तो उसके लिए तो सिर्फ वही जो सामने वाला है, चाहे कोई भी गुरु बन के सामने आ रहे हैं उनके लोगों के, या जो भी कोई प्रवचन कर रहे हैं या कुछ भी है, उसके लिए तो कोई और नहीं है, वो उसको फॉलो करता है. और अल्टीमेटली कैसे आपने बताया कि गुरु भी 5 प्रकार के हैं, तो पहले दूसरे तीसरे लेवल पे जो है वो मास में है. तो लिटरली होता क्या है कि जो इन जनरल पब्लिक है उसके लिए जो एक्चुअल में उसका कर्म मार्ग था वो वहां से हटके बिल्कुल वो तो अपने तरफ से गुरु को गुरु मान के चल रहे हैं, लेकिन वो भटक कहीं और रहे हैं. तो इसलिए मेरे को लगता है कि इससे अच्छा तो ये था कि कर्म मार्ग की अगर तरफ ले जाते या ज्ञान मार्ग की तरफ ले जाते तो शायद उनका कहीं उद्धार हो सकता है. इसीलिए डोंट इवन चूज योर गुरु ब्लाइंडली. मैं बस माला डाल दिया और मैं बैठ गया, इसका मतलब मैं गुरु नहीं है सकता, नहीं हो सकता. देखो उसको वो कर क्या रहा है. सीधा सरल उपाय है. अब कुछ लोग हैं कि प्रवचन सुनने जा रहे हैं. अच्छा, प्रवचन किसका? ना मौनी बाबा का. अच्छा, मौनी बाबा क्या प्रवचन करेंगे? नाम ही मौनी है. तो किसी ने कहा कि हम ब्रह्मचारी जी के आश्रम जा रहे हैं. अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, चलो. हाँ, ब्रह्मचारी जी के 8 बच्चे हैं. ये तो सही ब्रह्मचारी हुए. अरे ऑडियो वीडियो देखो, इज इट मैचिंग और नॉट? इट डजंट मीन विद द क्लॉथ. कपड़ों से मतलब नहीं है. क्या वो अभी जैसे है मेरे सामने, क्या मेरे पीछे भी वो वैसा ही है? क्या उसकी बातें जो यहां करता है वो उसी तरीके से जीता है? क्या आप उसके पास बैठने से
आपको वो अनुभूतियां हो रही है वो जिस बात की बात कर रहा है, या खाली कहानियां सुना रहा है? एक बार ऐसा होता है, हनुमान जब पहली बार राम से मिलते हैं, ठीक है, तो हनुमान, सबको पता है कि हनुमान जब पहली बार राम से मिलने गए, वो परीक्षा करने गए थे whether he is really राम और नॉट। तो उन्होंने क्या किया, ब्राह्मण का भेष बदल के गए, और जैसे ही ब्राह्मण का भेष बदल के गए, राम पहचान लिए कि आ गए, कि वो है नहीं जो दिखते हैं। तो हनुमान जैसे ही जाके उनके सामने खड़ा होता है, तो राम प्रणाम नहीं करते, हनुमान प्रणाम करता है। अब राम उन्हें पूछते हैं, आपने मुझे प्रणाम क्यों किया? मैं तो क्षत्रिय हूं, आप तो ब्राह्मण हो, एक ब्राह्मण क्षत्रिय को क्यों प्रणाम करता है? तो हनुमान कहते हैं, क्योंकि आप वो नहीं हो जो आप बता रहे हो। तो राम ने हनुमान को पूछा, तो फिर मैंने भी तो आपको प्रणाम नहीं किया, फिर आपको कुछ कहना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि आपको भी पता है कि मैं वो नहीं हूं जो मैं बता रहा हूं, इसीलिए कहते हैं कि वो क्षत्रिय क्या क्षत्रिय जो ब्राह्मण के सामने ना झुके, और वो ब्राह्मण क्या ब्राह्मण जो क्षत्रिय के सामने झुक जाए। और यहां दोनों ने सही बात कही, जो तू दिखा रहा है वो तू है नहीं, और इसीलिए ये कहा जाता है, देखो जो दिखा रहा है वो है या और कुछ है। तो हनुमान और एक बहुत ही सुंदर कथा कहते हैं, उन्हें कहते हैं कि राम कहते मुझे पहचाना कैसे? तो हनुमान कहते हैं कि ऐसा लगा कि आपको मैंने कहीं देखा है। तो राम पूछे कहाँ? तो हनुमान सोचते हैं सोचते हैं सोचते हैं और कहते हैं, हाँ याद आया, देखा है अपने हृदय में। पहले कहीं आपको देखा है, तो कहाँ ना, पहले आपको अपने हृदय में देखा है। जो अंदर है वही बाहर है, जो बाहर दिख रहा है वही अंदर बैठ के देख रहा है। ये एक बहुत सुंदर घटना है, कभी हनुमान के बारे में बात करूंगा तो पूरा व्याख्या करूंगा उसकी। तो कमलेंद्र जी, जाने से पहले अगर हनुमान भी रूप बदल के जाके राम को परीक्षा करने जाते हैं, शिव भी पार्वती को पहुंचने से पहले उनकी परीक्षा लेते हैं, गुरु बनाने से पहले परीक्षा ले लेना। बाद में गुरु भले ही लाख परीक्षा ले, लेकिन पहले गुरु की परीक्षा होनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, विद्या जी कहाँ गए? हाँ, टीचर एट स्कूल, राइट? अच्छा, पहले आपने एग्जाम देके पास करके फिर टीचर बने या उल्टा है? हाँ, तो मैं तो वही कह रहा हूँ कि गुरु की परीक्षा पहले होती है, तो जो परीक्षा होके पास हो जाए तब गुरु बनते हैं। वैसे आप लोगों ने परीक्षा की कि नहीं मेरी? मैं तो सीधा मुंह पे बोलता हूँ, परीक्षा करके देखो, फिर नहीं तो क्या पता फिर गलत जगह पे घूमते रह जाओगे। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ लोग पहले ही कह देते हैं कि आपको पहले सेवा करनी पड़ेगी, तब जाके 12 साल के बाद फल मिलेगा। मैं कहता हूं पहले फल ले लो, उसके बाद देखेंगे सेवा की जरूरत है कि नहीं। और नहीं, ये बताने की चीज है नहीं।
नहीं तो कई बार हमें पूछा जाता है आभा जी कि क्या आप सच में हमारे लिए कुछ करते हो? हम मुझे लोगों ने ये भी पूछा है। तो जब मैंने ये अनुष्ठान किया, ये दशहरा के टाइम पे, जब अभी नवरात्र गए तो उसके लिए जब अनुष्ठान किया, तो मुझे जानते हैं कितने लोगों का लिस्ट आया था? 382 पीपल का लिस्ट था मेरे हाथ में, और हर एक के लिए मुझे एक एक आहुति देनी थी एवरी डे। और बाकी मेरे जो अलग थे प्रोसेसेस, मतलब कम से कम 800 से 1000 की आहुति होती थी एवरी डे। वो करते करते मेरे हाथ में छाले पड़ गए थे। यहाँ कम से कम ये अभी हील हो गया है। तो मैंने वो फोटो लिया था हाथ का, और मैंने उसको 2 लोगों के पास भेजा था। एक हरि भाई थे, दूसरा महाकाल था, जिसको मैंने फोटो भेजा था कि देख, लोग पूछते हैं हम करते नहीं करते। अब ये क्यों हुआ, मुझे तो इन सारी चीजों की जरूरत है नहीं। अरे इसको हटाओ। हाँ भाई हटाओ उसे। सो ये तो हील होने के बाद के फोटोज है। तो इसीलिए हम परीक्षा देने को तैयार हैं कमलेंदर जी। हमारी तरफ से कोई ये नहीं रहेगी। इसीलिए मैंने कहा ना कि जो संसार के लिए आएंगे वो संसार में विलीन हो जाएंगे, जो शिव के लिए आएंगे वो हम में लीन हो जाएंगे, वो हमारे साथ रह जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे वो। कई सारे लोग आए चले गए, उसमें क्या हुआ? क्यों गए जानते हैं? वो मेरे इस मेहनत के काबिल नहीं है। सही कह रहे हैं। वो मेरे इस मेहनत के काबिल नहीं है, इसलिए चले गए। क्योंकि मैंने अगर चीजों को अपने हाथ में लिया है तो मैं वो करूंगा जो मैंने कहा है। वो हाथ में छाले पड़े या पैर में कांटे, क्या फर्क पड़ेगा? जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो ली है। हाँ हाँ, अगर और भी कुछ परीक्षा लेना है तो ले सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। ओके, और मैंने सिर्फ एक हाथ बताया, हाथ बताया ही नहीं अभी तक। बट जैसे एक पिता अपने बच्चों के लिए जब बाहर जाता है काम करने के लिए, तो ये नहीं देखता कि धूप कितना हो रहा है। सही सही बात। वो ये दिखता है कि मेरे बच्चे कैसे आगे बढ़े। वो ये देखता है कि मेरे बच्चे कैसे अच्छे कपड़े पहने, अच्छे खाना खाए, अच्छा तरीके से रहे, जीवन में आगे बढ़ जाए। वो यही सब सोचते हुए वो धूप में बारिश में निकल जाता है। वो आके बताता भी नहीं है कि मैं भीग गया हूं या मुझे भूख लगी थी। लेकिन अक्सर क्या होता है, वही बच्चे बाद में छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर छोड़ के भी आप गए तो मुझे लगेगा कि मेरे बच्चे बड़े हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, इसीलिए छोड़ गए। मैंने अपना कार्य सही किया। क्योंकि बच्चे मुझे कुछ देंगे इसलिए तो मैंने बड़ा नहीं किया था ना, और बच्चे मेरे लिए कुछ करेंगे इसलिए तो पैदा नहीं किया था। मैंने अपने बच्चों के लिए जो मेरा क्या कहते हैं उसके, ड्यूटी, जो ड्यूटी थी मैंने ड्यूटी किया उसका। कर्तव्य एक होता है, कर्म और एक चीज होता है। कर्म होता है जो मैं अपने लिए करता हूं, कर्तव्य वो होता है जो मैं दूसरों के लिए करता हूं। और मेरा कर्तव्य जो है मैं वो करके जाऊंगा, क्योंकि कर्म तो हमें करना नहीं है, और बाकी जो कर रहे हैं वो कर्तव्य है। तो कुछ कर्तव्य आपके प्रति है तो आपके लिए कर रहे हैं। चलो, थैंक यू कमलेंदर जी।
थैंक यू कमलेंद्र तो जी। बताइए हमारी भक्ति हमको क्या लेजी बना दी? नहीं बनाई। नॉट एट ऑल मदर जी। अश्विन जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Pranam Manashi. प्रणाम। Pranam Hari Bhai and Namaskar to Aham Brahmasmi to all divine souls. Manasi, mera like continuation of my previous question. Rather like the next question of previous answer. So my previous question was like cow like गाय बन के जिए या lion बन के जिए, शेर बन के जिए. So in concise the answer was like आप शिव बन के जियो. तो शिव बनने का प्रोसेस ठीक है बताया गया है और मैं लाइक से मैं कर रहा हूँ. कैसा पता चले कि मैं कितने व्हाट इज माय माइलस्टोन, मैं कहाँ तक पहुंचा. ओके और मैं भ्रम में हूँ कि मैं शिव बनने की कोशिश में हूँ. व्हाट इज अ मेजरिंग डिवाइस, मतलब मुझे कैसा पता चले कि मैं सच में शिव बनने की प्रोसेस में हूँ या शिव बन रहा हूँ. So that is a question. So ultimately अश्विन जी आप ये पूछ रहे हो कि क्वालिटीज ऑफ शिवा, क्योंकि if I tell you the qualities of Shiva you can compare it and then you say okay these two are matching, ये Xerox copy हो सकता है. You see the problem here is Ashwin ji, I don't want to make you a Xerox copy. I want to make you the original. And in order to become the original, now the problem is there is no reference point to tell you whether you have really gone to that path or not. So यहाँ पे एक ही रास्ता है अभी कि जो बताया जा रहा है उसे मान के चलना पड़ेगा. लेकिन क्या आप हर किसी का बात मान लोगे? नहीं. सो पहले इसीलिए हम जो अभी बात कर रहे थे, यू शुड टेस्ट इट फर्स्ट व्हाट दे आर सेइंग. वो जो बता रहा है क्या वो सच में हो रहा है? इज इट हैपनिंग इन दैट वे? दैट मीन्स यू डेवलप अ फेथ टुवर्ड्स दैट. देखो दो चीजों के बारे में मैंने बात किया था व्हेन आई केम ऑनलाइन, व्हेन आई वाज ऑन दैट माउंटेन. मैंने एक चीज बताई थी कि मदर इज द ट्रुथ बट फादर इज ट्रस्ट. याद है ना? मदर सच्चाई है लेकिन फादर के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ता है. सो हियर यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट द ट्रुथ. व्हाट इज द ट्रुथ हियर? Who is saying it? What is his experience or her experience in that field? Has he or she attained to that state? If they have attained to that state, then you have one standpoint as mother here. That is the truth. Now, as a mother, she will let you know who the father is, and you have to believe that. Or else, every child would run for a DNA test. Does it happen? No. That's where the trust appears. Now, when you ask me the question, how to identify, what is the measuring scale? The measuring scale is you. Nobody else should be the measuring scale for us. Compare yourself from the day one to the days that are passing by. जो ऐसे दिन बीतते जा रहे हैं, आप में क्या बदलाव आ रहे हैं? अगर छोटे छोटे चीजों को देखना चाहें, देन एक बड़ा टिपिकल चीज होगा, आपकी वाक सिद्धि होने लगेगी. Means what you speak, it starts manifesting faster. Right? Second,
even despite in all amidst of chaos, you will be as cool as a tree standing amidst of a traffic, still blowing the wind. Second. Third, when you are sitting with no one else but yourself, you are no more alone. आप अकेले नहीं हो, आप एकांत में हो. अकेलापन और एकांत में बहुत बड़ा फर्क होता है. अकेलापन ये होता है कि आई एम सीकिंग समबडी टू कम, कोई दूसरा नहीं है इसलिए मैं अकेला हूं. लेकिन एकांत का मतलब ये होता है अकेलेपन का अंत हो जाना. मतलब एक का अंत हो गया, ये सब बन गया. I became everything. That's why I'm not one thing anymore. एकांत, ये जो एक था इसका अंत हो गया, ये सब बन गया. That will happen to you. Then there are other things. When, I don't know if you people have observed it or not. When you walk in a garden, first, leaves will fall on you. Second, flowers will fall on you. Have you observed that? पहले पत्ते गिरेंगे और अगर आपकी साधना आगे बढ़ती गई तो देखना फूल भी गिरेंगे. But you will never know that. And we don't tell all those things also. Or else what will happen is, oh, so now I have become someone. No, we have not become someone. It is just a process that when the world is even not able to see you, the nature has started accepting your divinity. You have heard the stories of people down there in US where there is too much of cold and tulsi plants are growing, right, Santoshi ji? Which is very irrational. It is not possible to grow tulsi leaves in such conditions. How is it growing? It's not growing because of the climate, because they don't get that kind of heat out there, but it is taking the heat of the divine sun that has arose within you. And you don't realize what kind of potent energy you are carrying around. वो बाहर के सूरज के वजह से जिंदा नहीं है वो पेड़. वो आपके अंदर जो सूरज उग गया है उसकी गर्मी से, उसके ताप से, उसकी शक्ति से वो बढ़ रहा है. Suddenly your days will be brighter. It doesn't mean that your boss has changed. No. Your days have become brighter. ये नहीं कि बाहर जोर से सूरज चमक रहा है ना, आप जहां जाते हो वहां का माहौल बदल जाता है. When you go, the space changes. How many of people might have already asked you, like, what's going on? And how many people feel more comfortable to share their sorrows with you now? Now you just sit there, okay, chalo, suno, ye bhi sun lo, ye bhi sun lo. How many of you have started finding answers for their problems just like this? You just say a word and you say, oh my God, I never thought this. It could be so simple. Why? Because you are no more on the end of problems. You are standing with the solution. ये changes आएंगे. Animals will try to have close proximity with you. वो आपके करीब आने की कोशिश करेंगे. Then there are
many other signs, because if I tell you that, I something funny happened. When I was traveling, one of my friend called me to his house. Okay. And his wife said, I think there is someone in this house. I said, yes, your husband is roaming around. He said, no, no, not that, not that. I said, then what? Now, in the night, because he doesn't stay here, he goes to the hospital, and I'm here at home alone with my daughter, and I start hearing the sounds of the tinklets and the bangles. मतलब चूड़ियों की और पैंजन की, घुंघरू की आवाज सुनाई देती है, और मुझे डर लगने लगा है. You know what I said? I said one thing to her, and she's so happy now. I said, after this day, whenever you hear a sound of a bangle or a trinket, never be fearful, because it can only be the sound made by the goddess. बताओ अभी डर लगेगा? क्योंकि अगर आज के बाद कभी भी घुंघरू के या चूड़ियों की आवाज आई, कोई भूत चूड़ी या घुंघरू नहीं पहनता है. हाँ, माता रानी जरूर पहनती है. तो इसलिए जब भी घुंघरू और चूड़ियों की आवाज सुनाई दे, डरना नहीं, कहना माँ तू आ गई, अब मैं चैन से सो सकती हूँ. Your experiences, Ashwinji, should be your measurement. Shall I tell again more than that? Knowingly, unknowingly, people will pour water on you, especially your legs. हमारे तो कितने बार धोते रहते हमको पता भी नहीं है. संतोष जी, I was walking. A person was throwing water on the ground. Okay. वो देख रहा है मैं आ रहा हूं. I don't know what happened to him. पूरा बकेट लिया, मारा मेरे ऊपर. Now just when I was there, पूरा पैर धो दिया. फिर बोला अरे अरे क्या हो गया? मैं बोला नहीं, अच्छा करा, सोमवार है. हाँ, और एक चीज होगा, दूध उबलेंगे घर में, आपके हाथ से दूध गिरेंगे. ना ही डरना है, ना ही गाली देना है. दूध उबला तो इसका मतलब अग्नि ने ऑलरेडी ग्रहण कर लिया उसे. हाथ से दूध गिरा मतलब, how do you know that divine is not there on the floor where it poured itself? मैं तो कहता हूं मेरे हाथ से दूध गिरा तो वहीं पे ज्योतिर्लिंग है. आज वो वहां प्रकट होके मेरे हाथ से वो दूध ग्रहण करता है. मेरे लिए यही ज्योतिर्लिंग है. मैं पोछा लगाने से पहले पहले प्रणाम करो वहां पे. Now tell me where we will lose out the sight of the divine anymore. If I live every single moment of my life that I don't see anything else but divinity. मुझे उसके सिवा कुछ दिखाई नहीं देता. तो बताओ, क्या मुझे ये देखना पड़ेगा कि शिव मेरे घर कब आएंगे? वो भी देखना नहीं पड़ता, क्योंकि हर जगह पे मैं शिव देखता हूं, तो शिव तो मेरे साथ ही है. और जैसे हनुमान ने कहा ना, पहले कहीं देखा है. कहाँ? अपने हृदय में. तो पहले अपने हृदय में जाके देखो कि हृदय में शिव है क्या. अगर हृदय में शिव है तो आप शिव हो. आंख बंद करो, शिव दिखता है. अगर आंख बंद करने के बाद अंधेरा नहीं, शिव दिखता है, तो अंदर वही है. और किसी दिन अंधेरा दिखा, मैं उसे कहता हूं
तू अंधेरा बन के आ या उजाला, है तो तू ही। Because I don't want to see anything else apart from that. मैं ये कहता हूं अश्विन जी कि लोग हर अच्छे में बुरा देख लेते हैं, मैं कहता हूं हर बुरे में एक अच्छा देख लो। हर अच्छाई में बुरा निकाल देते हैं लोग, मैं कहता हूं हर बुराई में एक अच्छाई देख लो। लोग तो भगवान में भी पत्थर देख लेते हैं, मैं तो कहता हूं पत्थर में भगवान देख लो। और जब लोग आप में इंसान देखते हैं तो मैं कहता हूं अपने में भगवान देख लो। हो सकता है पागलपन, हाँ, लोग जरूर कहेंगे कि तुम पागल हो गए हो। दैट इज द फोरमोस्ट साइन। यस, वेरी गुड। कहाँ वो 3-3 घंटे 4-4 घंटे कहाँ बैठे रहते हो? सुबह 4 बजे कोई उठता है? क्या आज ये माला, कल वो माला, आज तुलसी, कल रुद्राक्ष, परसों और कुछ, कितने मालाएं लेके घूम रहे हो? उन्हें एक याद दिला देना अश्विन जी, ये माला भगवान के जाप के लिए है, माया का पाश नहीं है। माया के पास में तुम बंधे हो और हम माला और मालाएं फेरते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया है कि जो अदृश्य माला है वो हमें वहां से निकालने नहीं देगी। ये जो माला दिख रही है ये रास्ता बना रही है। What are you doing? Every single day you are creating a staircase while rolling it. जब माला करते हो तो गिनो ना गिनो, ये याद जरूर रखना कि एक माला फेरा तो एक सीढ़ी बनी, एक माला फेरा तो एक सीढ़ी बनी। क्योंकि अश्विन जी, अगर पाप का घड़ा भरता है तो पुण्य का घड़ा भी जरूर भरेगा। भरेगा नहीं भरेगा? तो मैं अपने पुण्य का घड़ा भरते जा रहा हूं, जिस दिन भर गया काम उसका। तो मैं तो कोई वेटिंग स्टेशन पे नहीं बैठा हूं मैं, आई एम ऑलवेज देयर, इट इज ऑलवेज देयर। सो आई डोंट सर्च फॉर क्वालिटीज। हाँ, but if somebody wants to see the qualities, you can show them the qualities, don't ask the qualities. आपके हाथ रखने से कोई चीज बदल जाए, किसी की बिगड़ी हुई किस्मत बदल जाए, शायद आप भगवान बनने लगे हो। बट ऑलवेज आस्क फॉर वन थिंग अश्विन जी, वो कहानी कहा था ना मैंने कि शक्ति मेरे परछाई को मिले, ताकि भलाई तो लोगों का हो और पता मुझे ना चले। So let the divinity work behind me, I work on my own divinity. और ये जो माला है जो फेरते हो, these are road maps to your home. आपको मंत्र जो दिया जाता है, आपको लगता है कि वो मंत्र है, क्या आपको पता है कि that is a hint towards your home. So when you start walking towards those road maps, you reach it.
So, कैसे शिव बने? बहुत सरल सा उत्तर देना चाहता हूं इतने सारे चीजें बोलने के बाद. द मोस्ट सिंपलेस्ट वन, you get attracted towards him. You cannot not think about him. आप कुछ भी कर लो, आपका ध्यान वहां चला ही जाएगा. पहले जब ये सब नहीं था तो क्या विचार थे, किसके विचार थे, और अब किसके विचार हैं, इसे पता चल जाना चाहिए कि अंदर कौन रहता है. If I'm always worried, that means worries are staying within me. If I'm always sad, that means sad is staying within me. But if I'm always happy, that means happiness is staying within me. And I just obviously just sitting there and I don't know what happens, but I just want to dance. तो पक्का नटराज बैठा होगा. The dancer is sitting, that's why I feel like dancing. Now can you see, like Aliva ji is not posting the write-ups, but every single day. Today also she has posted 2. कभी कभी मुझे लगता है किशोर जी वापस तो नहीं आ गए वहां पे. She is like writing crazy. But that's what she has accepted herself to be. उनके अंदर वो कला आ गई है जिसके वजह से जो she never thought she could write. Now she is writing pro. So अंदर जो है, अश्विन जी फिर याद है ना हनुमान ने क्या कहा था राम को, जो बाहर है वही अंदर है और वही अंदर से देख रहा है कि बाहर वही है. तो बाहर जो है वही अंदर है, अंदर बैठ के देख रहा है. और अगर आपको सवाल ये आ रहे हैं कि मुझे पता कैसे चले कि मैं शिव हूं, जिसने पूछा उससे पूछो कि तुझे क्यों लगा कि तू शिव है. तेरे लगने के पीछे तो कुछ कारण होना चाहिए. तो इसका मतलब तुझे कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस हो चुका है कि तुझ में थोड़ी कलाएं तो आने लगी है, इसलिए तू सवाल पूछ रहा है कि क्या मैं हूं. हाँ तू है, इसीलिए तू पूछ रहा है क्या मैं हूं. बट दैट इज अ गुड स्टार्ट, a good start to realizing your completeness. मैं तो बड़ा खुश होता हूं जब लोग मुझे सवाल पूछते हैं. मैंने कहा कि अच्छा शुरू हो गया, इसका मतलब वो आ गया है. You remember in childhood when you go to बन भोजनम करने जाते थे ना क्या, like you go into the forest to cook food and all those things. So you use a matchstick and you start burning it, huh? And slowly smoke starts. What is that indication? That fire is just about to lit. अगर धुआं निकला है तो आग जरूर है. तो अभी whatever you are going through, you are asking the question means, you know why I'm happy? I'm happy because I can see the smoke. Because without fire, there cannot be the smoke. And without that Shiva within you, that divinity within you, you cannot even start questioning, am I really the divine? So what you should do? Follow the smoke. You will find its base. And when you find its base, you will also find the fire. So I said, there is no scale other than you. Now, when I say all these things, why do you agree? You could have disagreed, but you know why? You are not able to disagree with these things because somehow within you it is saying, yes, 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 yes. Why is it saying so? Because
You have already known it. You are just reconfirming that. अब बोलो मैंने सही नहीं कहा. So that's how it is. It works in such a brilliant way that it doubts itself. But even that doubt उसी के ऊपर आता है जिसको पहले आप विश्वास करते हो. मुझे डाउट है वहां भूत है, मतलब मैं मानता हूं कि वहां भूत है, इसलिए मुझे डाउट है. अच्छा, मुझे लगता है, मुझे डाउट है कि क्या मैं शिव हूं, इसका मतलब मैं मानता हूं मैं शिव हूं. So even my doubt becomes my stepping stone. My doubts don't degrade me. My doubts upgrade me. Because I no more work on the realm of my doubts. I also go to the root cause of that doubt from where it has sprung. And now, you are there. And let your experiences speak. Okay, Ashwin ji. Thank you, Manoj ji. आवाज जी, please unmute yourself. प्रणाम गुरु जी. प्रणाम आभा जी. गुरु जी खुश बड़े लग रहे हो आप, इसका मतलब नवरात्र अच्छा गया है. बहुत अच्छा गया गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका. मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर हमको कभी ऐसे एहसास होता है कि हमारे आसपास कोई शक्ति है, कोई स्पिरिचुअल जिसको कह सकते हैं कुछ है, तो मुझे उनको क्या कहना चाहिए, मुझे उनसे क्या मांगना चाहिए? क्योंकि मुझे दुनिया भौतिक कोई चीज चाहिए नहीं, कोई वस्तु नहीं चाहिए. और सिचुएशन ऐसी होती है कि वाणी मौन, कोई शब्द ही नहीं होते हैं. कभी कभी जो सामने घटित हो रहा है या जो होता है उसके लिए मुझे कुछ नहीं समझ में आता है. इवन कभी मैं मंदिर में जाने के बाद भी भूल जाती हूँ कि मुझे इनसे कुछ कहना है या नहीं. बाहर तो मैं बहुत सोचती रहूंगी कि मुझे कुछ कहना है, मुझे ये कहना है, वो कहना है, बट जाने के बाद मुझे कुछ याद नहीं रहता. तो अभी नवरात्रों में अगर कुछ ऐसा मुझे ऐसा, तो मुझे पता ही नहीं था मुझे बोलना क्या है, इनसे क्या कहना है, क्या मांगना है. तो आप सिखाइए ना मुझे. आप पहले पूछना चाहिए था, मैं लिस्ट दे देता था आपको. कोई बात नहीं, अब फिर आएंगे वो तो मुझे तो पता है. सुमा जी के लिए ये भेज दो, राजन जी के लिए वो, अदिति जी के लिए ये, अपाराव जी के लिए ये, वो वाणी जी के लिए ये, संतोषी जी के लिए वो. दीजिए. एक बात बताइए आभा जी जी, अगर सच में वैसी शक्ति आपके सामने प्रकट हो जाए तो आप बात करने लायक रहोगे? नहीं वही तो मैं कह रही हूँ. मैं तो कुछ नहीं, मुझे नहीं पता, मतलब जो कुछ फीलिंग्स थी वो क्या था मुझे कुछ नहीं पता. लेकिन इवन अगर इन केस कभी फ्यूचर में ऐसा होता है तो मुझे क्या मांगना चाहिए, मुझे ये बताइए. ABCD बोलो, अ आ ई ई बोलो, जो भी बोलो, बोलो कि मुझे यही आता है, मुझे कुछ मांगना नहीं है, लेकिन नहीं, मुझे जो आ रहा है मैं वही बोल रहा हूँ. मांगना तो वाकई नहीं है. मैंने अंदर अपने आप में फील करके देखा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं मांगना है, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं. तो और अच्छी बात है, अब की बार जब आएंगे उनको बोलना इधर बैठो तुम मेरे साथ, तुम भी वही मैं भी वही, क्योंकि ना तुझे कुछ जरूरत ना मुझे कुछ जरूरत, ये तो सब दोनों चीजें साथ में बैठते हैं. दिमाग से सब गायब हो जाता है, कुछ भी नहीं, सब ब्लैंक नील. कुछ ना कोई शब्द रहते हैं, ना मुझे लगता है सांस की गति रहती है, आवाज भी नहीं रहती है, सिर्फ रोमांच रहता है और आंसू रहते हैं बस. सो फिर क्या एंजॉय करना दैट. है? कुछ मांगने की जरूरत नहीं, वो बस यू जस्ट सिट देयर एंड जस्ट एंजॉय इन दैट. मैं कहता हूँ जब शिव आपके सामने आएगा आप उसे मांगने के लिए समय गवाओगे या बैठ जाओगे उसके साथ, बोले बैठ, अब बैठ जा, बस हो गया और कुछ नहीं चाहिए. और गुरुजी आंखें भी नहीं बंद करनी है, क्योंकि अगर आंखें, मुझे लगता है आंखें बंद करने के बाद ये एहसास ना खो जाए हो रहा है, तो आंखें भी नहीं देखो, बंद करनी है. और मतलब
मैं मतलब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मेरा क्वेश्चन क्या है, बट मुझे ना छोटे से साधारण शब्दों में बता दूं कि मुझे क्या कहना चाहिए और कैसे रिएक्ट करना चाहिए यदि वेरी कभी गुड, ऐसा होता है तो। चलो डन। तो आपको सीधा सरल उपाय से बता देता हूँ। जी। मानो कल के दिन हम आपके घर आए, तो आप क्या करोगे? मैं तो खुश होके, समझ में नहीं आएगा पहले ये मेरे लिए कितना बड़ा अरे सरप्राइज नहीं है। नहीं, तो हम दरवाजे पे खड़े रहे। नहीं, दरवाजा खोल के तो मैं अंदर हाँ, तो अंदर तो दरवाजा जाऊं। खोलोगे, अंदर बुलाओगे, ओके नेक्स्ट। हाँ, फिर क्या बैठा लेंगे भैया, आसन देंगे, आप बैठिए, अच्छा कुछ चरण पखार लेंगे, कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, ये बस आपका स्वागत करेंगे। वेरी गुड। अगर ये सारे चीजें मेरे लिए करोगे तो ये सारे चीजें लिए उनके लिए भी कर दो। लेकिन अब वो की भी बार जब भी वैसी फीलिंग्स आए तो क्या करना, पहले दरवाजा खोलना, जाके बोले आ गए, आओ, स्वागत है आपका। गुरुजी, आप तो मुझे एक ह्यूमन की तरह नजर आ रहे हैं, वो आपके लिए ये सब कर सकती हूँ, बट वो फीलिंग है, और वो फीलिंग तो मुझे बात करते रोमांच होने लगता है। वो फीलिंग अलग तरीके की है। मुझे कभी कोई नजर नहीं आ रहा है, बट मुझे अंदर से लगता है कि जैसे कि मेरे अंदर ही ये फीलिंग है, अंदर से ऐसा फील ही हो रहा है कि अब मुझे करना क्या है, मुझे कुछ नहीं पता है। बहुत मुझे बढ़िया आभा जी। उसके लिए ये भी सिंपल बहुत सरल उत्तर है, उसके लिए भी बहुत सरल उत्तर है। अगर हाँ मैं जी, जाऊंगा तो आप घर का दरवाजा खोलोगे, वो आते हैं तो दिल का दरवाजा खोलो। कुछ आता ही तो नहीं है मुझे। तो मेरी इसका प्रॉब्लम। मतलब आभा जी, जब कुछ नहीं आता तो वही आता है। चलो ठीक है, बाकी कृपा इसीलिए दृष्टि मैंने अभी कभी तो कुछ आएगा। देर पहले जब मैंने धवल जी को वही कहा था कि व्हेन यू एम फॉर नथिंग यू हिट नथिंग। इसके दो पहलू हैं। एक, अगर आप किसी के ऊपर निशाना ही नहीं लगाओगे तो कहाँ लगेगा? तो व्हेन यू हिट नथिंग यू हिट, व्हेन यू एम नथिंग यू हिट नथिंग। लेकिन उसका एक स्पिरिचुअल पहलू भी है। द स्पिरिचुअल पहलू समझो उसका। व्हेन यू एम नथिंग यू हिट नथिंग। जब मुझे कुछ नहीं चाहिए तो मुझे सब कुछ मिल जाता है। सब कुछ मतलब वही हो सकता है। और अच्छी बात हमें ये लगती है आबादी की, आप ये सवाल पूछते हो कि मैं करूं तो क्या करूं, मैं पूछूं तो क्या पूछूं। मुझे तो कुछ चाहिए नहीं तो मैं क्या मांगू। मुझे तो ये समझ ही नहीं आता जब कि कुछ अगर चाहिए ही नहीं तो मांगना किस बात का? उषा जी हमें यही बोल रहे हैं बार बार, बोल रहे हैं कि जब कुछ चाहिए ही नहीं तो मांगना क्या है। लेकिन कहते हैं और सुना भी है कि अगर भगवान मिलता है तो कुछ बोलना चाहिए, कुछ कहना तो चाहिए ही ना उससे। एज ए प्रणाम, अब पता नहीं मुझे क्या था, मुझे नहीं पता वो सब क्या था, और शायद मैं उसको एक्सप्लेन कर ही नहीं पाऊंगी, इसलिए नहीं कर पाऊंगी क्योंकि अगर आप मुझे पूछे मीठा कैसा था तो मैं मीठे शब्द को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो उस वो फीलिंग अलग तरीके की होती है, तो मुझे लग रहा है। लेकिन मैं तो आप एक एज ये बिल्कुल दुनियादारी के तौर पे आपसे पूछ रही हूँ कि मैं क्या मांगू और क्या कहूँ और क्या कैसे 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 क्या बिहेव करूँ, मेरी समझ में नहीं आया। बट अच्छा, फीलिंग्स अलग होती है, तो, फीलिंग्स तो एक्सप्लेन। संतोषी जी ने कहा कि जो आया है उसी से पूछ लो कि मैं क्या पूछूं। कुछ इतना कम वक्त होता है कि मुझे लगता है कि वो पूछने का वक्त भी नहीं देगा इतना कि पूछें कैसे उससे, वो भी अब क्या पूछें, ये भी तो नहीं पता कि पूछना क्या है। वहां पूछना नहीं है, देना होता है। मुझे तो गुरुजी सिर्फ महसूस करना आया, बाकी और कुछ नहीं। आभा जी, मैंने क्या कहा? वहां पूछना नहीं है, वहां देना है। क्या देना है? अपना समर्पण ही है, और क्या है, हम पूरे के पूरे दे रहे हैं, जो चाहे सो कर ले। बस खत्म, यही यही बोलना है। अब आपने कहा ना जो, वही बोलना है। चलो खैर ठीक है, आपकी कृपा बस ऐसे बनी रहे और ऐसे ही बरसती रहे, और मुझे अनुभव होते रहे अच्छे अच्छे बस। क्योंकि मैंने शुरू से जब से आपको ज्वाइन किया मैंने यही कहा था, मुझे कोई अनुभव होता ही नहीं, मुझे कुछ नहीं होता।
मुझे कुछ नहीं होता। मैंने आपसे यही कहा था, बट इस बार मैंने आपको पूरा डिटेल भेजा था सब, कि कब और कहाँ और कैसे सब कुछ किया, तो आपको पूरा भेजती रही मैं। बट हाँ, हो सकता है कि आपका इधर रहा होगा नजर मेरी तरफ। मुझे ना आभा जी कभी कभी शब्दों के ऊपर डाउट हो सकता है, उसके ऊपर कोई डाउट नहीं है। अगर मैंने कह दिया है कि आपको एक्सपीरियंस होगा तो वो करवाएगी, वो मेरा काम नहीं है, उसका काम है। गुरुजी क्योंकि इतना प्रेम है कि वो मना ही नहीं कर सकती। बस अच्छी बात है कि आपको इतने सुंदर एक्सपीरियंस हुए वहां पे। मैं तो कहता हूँ बस बरसती रहे, वो आती रहे आपके घर में। ये खैर ये भी आपकी कृपा की अनुष्ठान हुआ जो पूरी तरह से सफल भी रहा, और जो शुरू से थोड़ी सी अनुकूलताएं जो मिली वो भी सब आपकी दया से सब कुछ अच्छे से हुआ। बट यही मेरा क्वेश्चन था, फिर आगे कभी ऐसी कृपा बनी रहे कि अब वो फिर आती रहे और हम मिलते रहे। बस ठीक है गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद है आपका। बस धन्यवाद आभा जी। थैंक यू आभा जी। थैंक यू। शिव शिव धवल जी। Yes, you can unmute yourself. Yes. प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम शिव धवल त्रिवेदी जी। So दो चीजें एक्चुअली मेरा, I was not having any question, but while attending the session two came up, so I couldn't resist myself without saying it. So the first one is प्रभु जी, you mentioned that मजा आ गया ये सुन के, आपने पूरा illustration दिया कि what we will feel and what kind of experience we will be getting. इतने में ही खुश हो गए। तो एक चीज मैं बहुत टाइम से महसूस कर रहा हूँ, आई नेवर सेड और डिस्क्लोज, मगर आज वो आपने बोला कि आप जंगल में या गार्डन में जाते हो और पत्ते और फिर फूल गिरते हैं। तो कहीं समय से जब भी हमारा कोई भी पूजा होता है, कोई भी मेडिटेशन होता है, तो I have experienced वो, is it an illusion? Is it imagination? I'm unaware, but as you brought up, I just wanted to say कि I feel like, you know, devs and all my parents and all my like pitrus are there in nearby vicinity, and they just shower with the flowers. बड़े खुश होंगे आपके ऊपर फूल बरसा रहे हैं। That is the one. And the second, you said that people will get some solution. So it is a very recent 1 week back story. I am going to some place recently in a week's time, and I came in contact with a young kid who was having a terrible life so far. And within 2-3 days, I don't know, I have just guided her, like, and then I heard her saying yesterday that, you know, my whole life has changed in 2 days. And I don't know, means I'm supposed to be there for a month. She said that in 2 days, if I am like this, then I'm unimagining that how it will happen in a 1 month's time. And she said that I'm saying it to everybody in my circle. If you want to hear the recording, I can. And so, you know, it exactly resonate what you just said, these two parts. So thank you and pranam for giving all this capabilities. So आपने पूछा था धवल जी कि how can I create a impact? Now you see what you do. You should be very careful before asking. चलो, thank you धवल जी, thank you so much.
Pranam. Thank you, Dhavalji. So none of you could ask me a tough question. Okay, good. So it was like we just asked very simple questions this time, but that's okay. So here we will stop for the day, and the day might be on Sunday. We will meet again. We will meet with something new, something again that we might have not discussed, might not have been worked on. देखते हैं. We'll bring something again. So thank you all for joining. Thank you all for being here. Till we meet, Alivaji, do share your write-ups in the group so that people also get that shower of blessings through words. So till we meet again, stay God and be God, and continue to be that divine light that is spreading its divinity all across.